مسئلہ میں نے پہلے اس پہ لکھ بھی دیا آپ اور کیا بات اب پوچھی لکھ جائے دیا آپ نے کہ دین کا مسئلہ ہے، اس کو ماننے والا، اس عقیدے کو رکھنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ بھائی اب بھی یہ پوچھنے والی بات ارے تو بتانے میں کیا ہے مسلمان ہے یار ارے بتائیے میں نے کہہ دیا جو نہیں مانے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اور جو اور کیسے بتایا جائے مانے گا تو مسلمان بے ہے، شک، تو بے بتائے شک، بے شک۔ مسلمان۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی الحمدللہ شفاعت کا بات اس میں ٹاپک دوسرا ہے، ابھی نکل کے آ جائے گا۔ جملے میں کیا ہو گیا لوگ، ابھی بات ہوگی، سب ہوگی، لوگ لکھو یہ بات آپ لکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستو ناظرین، دیکھیں یہاں پہ دیوبندی اور بریلوی کا کتنا ٹکر دھماکہ یہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگوں کو میں فل اسکرین پہ دکھاؤں گا، آپ کو فل ویڈیو دکھاؤں گا اسکرین پر، تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیے اور دیکھیے دیوبندی کس طریقے سے چلا رہا ہے اور کس طریقے سے بھونک رہا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ کس طریقے سے یہاں پہ مناظرہ ہو رہا ہے، آپ لوگوں کو پورا دکھانے کی کوشش کروں گا، تو آپ لوگ دیکھیے اور ویڈیو میں بنے رہیں۔ تو جیسے کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ دیوبندی تو اپنے آپ کو بہت بڑا اشرف علی تھانوی کا یہ بتا رہا ہے، تو آپ لوگ خود دیکھ لیجئے، میں موبائل کے اسکرین پر آپ کو دکھانے کا کوشش کروں گا، تو آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں۔ جب تک کے لیے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ کیا مسئلہ میں نے پہلے اس پہ لکھ بھی دیا اب اور کیا بات اب پوچھی جائے لکھ دیا آپ نے کہ دین کا مسئلہ ہے، اس کو ماننے والا، اس عقیدے کو رکھنے والا مسلمان ہے یا نہیں؟ بھائی اب بھی یہ پوچھنے والی بات ارے تو بتانے میں کیا ہے مسلمان ہے یار ارے بتائیے میں تو۔ نے کہہ دیا جو نہیں مانے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں۔ اور جو اور کیسے بتایا جائے مانے گا تو مسلمان بے ہے، شک، تو بے بتائے شک، بے شک۔ مسلمان۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات آپ بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی الحمدللہ شفاعت کا بات اس میں ٹاپک دوسرا ہے، ابھی نکل کے آ جائے گا۔ جملے میں کیا ہو گیا لوگ، ابھی بات ہوگی، سب ہوگی، لوگ لکھو یہ بات آپ لکھیے۔ شاید بابو خان صاحب یار دیکھو کیا ہو گیا اس میں؟ خامخواہ الجھانے ارے سے بھائی، کیا فائدہ؟ دیکھو، ابھی آپ کے سامنے بھائی، کہا، ابھی آگے کوئی بات نہیں، بات ابھی ہونا ہے۔ بات صحیح ہے تمہاری۔ بات کریں گے پبلک کے آج پھنسے ہیں مولانا صاحب، سیکھ لو ان سے کچھ دین سیکھ لو، سکھائیں گے نہیں سکھائیں گے؟ بھائی دین سکھانے کے لیے آئے تو دین سکھائیں، آدمی کو پھنسانے کی کیا ضرورت ہے؟ شفاعت کا اقرار ان سے کہہ رہا ہوں تو منع کر رہے ہیں، تو کیا کرو؟ ارے جتنی بات ہو گئی آگے بڑھی نہیں بڑی بات بتاؤ، اتنی آگے بڑھ گئی، اب گفتگو شروع ہونا ہے۔ بس ایک جملہ لکھو، آپ کیا ہو گیا اس میں؟ اس لیے لکھوایا جا رہا ہے تاکہ آپ کے پاس سے نہ جائے۔ تو جب لکھ دو، یہ بات کیا ہے؟ یہ لکھو۔ ارے لکھ دو، یہ پیج پھاڑ کر ڈالوں، میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ ارے یار تو کیا ضرورت ہے؟ لکھ دو، لکھ دو۔ ایپ کی بات ہے اس میں، لیکن کیا ضرورت ہے؟ پہلے دین سکھانے کے لیے آئے۔ آپ بھانجے ہوں گے، سنیے، ایک منٹ، 10 کیمرے چل رہے ہیں یہاں پر۔ ارے کیا نام ہے آپ کا؟ زبیر۔ آپ بھانجے ہوں گے؟ ابھی زبیر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں لکھ دو، آپ کے بھانجے ہو گئے، ماموں سے کہہ رہے ہیں، آپ بات نہیں مانیں گے؟ تو اس میں کیا ہو گیا؟ تو مسئلہ بڑھاؤ یار۔ ارے سنو، جو چیز میں آپ سے صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ جو چیز زبان سے بول دیا، ویڈیو ریکارڈ ہو گیا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو لکھ گئی ہے، اس سے میں نہ پھراؤں نہ یہ پھرے ہیں۔ ویڈیو لائیو ہے، ویڈیو لائیو چل رہی ہے، بالکل بالکل، آپ اس میں کوئی ایڈیٹنگ تھوڑی نہیں ہو جائے گی۔ بالکل آپ لکھیے، اس میں کیا ہو گیا؟ دقت کیا ہے؟ کیا دقت ہے؟ بار بار وہی چیز جتنے بھی مناظر نیٹ پہ ہیں، ساری چیزیں یار بول دو نا، کیا معاملہ ہے؟ زبان سے بول دے یہ بنیادی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، دعوت وغیرہ ہمیں کوئی دقت نہیں۔ کیا پتا کیا ہے؟ یہی تو ظاہر کرنا ہے، کیا پتا کیا ہے؟ ہم بھی سننا چاہ رہے ہیں کیا غلطی کیا صحیح ہے۔ بالکل، ہم بھی یہی سننا چاہ رہے ہیں۔ یہی چاہ رہے ہیں کیا صحیح ہے، کیا غلط کی باتیں ہے۔ دین سکھانے کی باتیں ہوئی، دین سکھانے کی باتیں ہوئی، کہاں سکھایا جا رہا ہے؟ چلو خاموش رہو۔ آپ کے 10 کیمرہ چلنے سے بات خاموش ہو جائے یار یہ تم کو دین نہیں سکھایا جا رہا ہے۔ ارے تو کوئی دقت نہیں آ رہی تو کیوں دین کی باتیں کریں گے؟ خاموش ہو جائے، خاموش ہو جائے، بات ہو گئی، بس ہو گئی۔
कितना सीख गए इतनी देर में? दिन ठीक है कुछ और क्या? इतना सीखे हुए हैं इंशाल्लाह गुमराह ना होंगे। अरे गलत लफ्ज कहना तो दीन सिखाए। ये आए हैं इतनी देर से सिखा रहे हैं, दीन सिखाए ना, दीन की बातें करें ना। अरे ताज्जुब में आपने अभी तक कुछ कुरान हदीस कुछ सीखा, यहाँ पे इतनी देर से बैठे हुए कुछ सिखाएंगे, ये सिखाएंगे, यही आदमी को उलझाते रहेंगे कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो। ये शफाअत मुस्तफा कुरान और हदीस नहीं है। शफाअत मुस्तफा का इनकार कौन कर रहा है? कोई करता है कोई? फिर ये क्या है? ये अरे खामोश रहो हजरत। ये इन्होंने मुझसे लिखने के लिए कहा था और बाद में ये साइन करने के लिए इन्होंने भी कहा था। ठीक है, मैंने ये लिख दिया इनके मुताबिक। इन्होंने जैसे पहले लिखा था नबी की शफाअत से इत्तिफाक है, इन्होंने ये लिखा था। हमने ये कहा हमारा दावा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के हुक्म से अपनी उम्मत की शफाअत फरमाएंगे। इन्होंने कहा दोनों बातें एक है। उसके मुताबिक इन्होंने मुझे इख्तियार दिया कि मैं लिखूं, साइन ये करेंगे। मैंने ये लिखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। अब आप साइन कर दो। शफाअत साइन कर दो। अब ये पता है क्यों साइन करवाए जा रहे हैं? अब पहले देखें, अब कहीं किसी ने कोई वीडियो में कोई बात किसी ने कहीं लिख मारी होगी किसी संगठन ने कहीं, तो कहेंगे वो फलाने मौलाना ने तो ये लिखा है, अब उसको तुम काफिर कहो। फलाने मौलाना ने तो हमको काफिर कहा है, कहना पड़ेगा भाई। उसको काफिर कहो। भाई जो उसूल के मुताबिक है, अगर जो हदीस पाक है बुखारी शरीफ की, मन काल अली अखीही या काफिर फकद बाअ अहदुहुमा, जिसने किसी मुसलमान भाई को काफिर कहा तो अगर काफिर कहा और कुफ्र है उसमें तो सही कह दिया, और अगर काफिर नहीं है तो वो कुफ्र पलट के उसी के गले का हार बन जाएगा, तोक बन जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर शफाअत रसूल मानने वाला मुसलमान नहीं है फिर उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। आपके मुताबिक ये अगर सही है बात और है भी सही, आपने कहा, इस पर साइन कर दीजिए बस। आप दोनों मुत्तफिक हो रहे हैं। बिल्कुल बात सही है। समझ रहे हैं बात? हाँ हम दोनों समझ रहे हैं। आप नहीं समझ रहे हैं। अभी बताइए, हजरत ने बात बताई, अब आप करिए साइन करिए। हजरत ने बात पहले बताई। अरे गुफ्तगू सुन लो, गुफ्तगू सुन लो। पहले तो इन्होंने बताया कि जो शफाअत का इकरार करे, शफाअत का इकरार करे वो मुसलमान है, और जो उसको काफिर कहे तो वो खुद काफिर हो जाएगा अगर वो काफिर नहीं है। अब मैं पूछता हूँ, काफिर का माना होता है कुफ्र करना यानी इनकार करना। किसी एक मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है वो सूद ब्याज का कारोबार कर रहा है, काय का कारोबार कर रहा है, हाँ वो अल्लाह से जंग का ऐलान कर रहा है, वो कुफ्र में है क्योंकि वो आदमी शफाअत का इकरार करता है। लेकिन अल्लाह वादउ ला शरीक ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही ही, जैसा कि उससे डरने का हक है। और कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, देखो तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। बेशक। किसके लिए कहा था? ये बात किससे शुरू करी थी? अल्लाह ने मुसलमान से शुरू करी थी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, जब तुम मरो तो मुसलमान ही मरना, अल्लाह कह रहा है। तो अल्लाह खुद ये बता रहा है कि अगर जिसने किसी ने किसी चीज का इनकार कर दिया और वो काम कर रहा है, हालांकि वो शफाअत का इकरार कर रहा है, लेकिन एक चीज वो कहता है कि भाई नमाज में नहीं पढ़ूंगा। आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो गया, मुसलमान है वो, फिर भी मुसलमान है। बताओ बताओ मुसलमानों, अगर वो कहे मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा भाई, मैं हूं तो मुसलमान, तो वो काफिर हो गया नहीं हो गया? हालांकि शफाअत का इकरार कर रहा था, शफाअत का इकरार कर रहा था, लेकिन उसने एक चीज का इनकार कर दिया, कहा मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा भाई। ठीक, अब वो कुफ्र में पड़ गया नहीं पड़ गया? अब ऐसे आदमी को आप काफिर कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? क्योंकि वो कुफ्र में है इस वक्त, और उससे समझा सकते हैं कि भैया आप जो है कुफ्र में जा रहे हैं, आप जो है हक से पलट रहे हैं, जो सही बात है उसको तुम झुटला रहे हो, तो ऐसा आदमी काफिर हो जाता है। समझ रहे? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं बल्कि अल्लाह का भी फरमान है। ठीक, लीजिए मैंने इस पर साइन कर दिए। साइन में नाम भी लिख दो थोड़ा, हमने अपना नाम लिखा उर्दू में पूरा, वो रहना चाहिए ना साइन के साथ। बाद में किसी को क्या पता किसने साइन करेगा।
तहरीर लिख जाएगी। बाबू खान रिजवी, ठीक है ना। हिंदी में भी लिख दिया और उर्दू में भी लिखे दे रहा हूँ, ठीक है ना। तारीख बाबू ये सब उसूली चीजें हैं भाई, ताहिर भाई हम जानते हैं इस चीज को। कब बात हुई, कौन सी तारीख हुई, सब चीजें जरूरी होती है, सबूत होता है। बाबू खान रिजवी, ठीक। ये मैंने तीनों जबानों में साइन भी कर दिए और लिख दिया। अब और आगे लिखते हैं, ठीक। ये बिल्कुल सही चल रही है, बात नहीं चल रही है, सही बात है। सही चल रही है। बहुत ही बताइए आपको कोई अल्लाह के बंदो, इनसे कहो कुछ दीन सिखा देगा। अरे ये भाई एक आदमी से बात हो रही है, सिखाया जा रहा है। अब सुनो, आगे सुनो बाकी। अरे भाई अब क्या बताइए, इन्होंने जैसा कि हाँ, इन्होंने ना मजाक वाली बात है। अब सुनो एक मिनट, हाँ मैं खामोश रहो। एक सवाल है तो क्या दिक्कत आ रही है? हाँ तो पूछ रहे हो। खटका तो इसी का ही है इसी में। पीछे से आवाज आ रही है, वो सब होगा तो पहले ही ये मुकम्मल हो जाएगा। अब ये बताइए, सब लोग खामोश हो जाओ भाई। अरे पहले वो बात हो जाने दो पूरी। आप लोग बोलो मत, देखो तवज्जो से, बेटा है खामोश हो जाओ। अभी इन्होंने शुरू गुफ्तगू में बताया था कि मैं मेरे बारे में कहा कि मैं इनको नहीं जानता हूँ, मैं सऊदी काम करने गया, इनको ये लगता है, लेकिन मैं काम ही नहीं करने गया, बल्कि क्या क्या कहा कि करा इन्होंने वहाँ तबलीग का कोर्स किया, दावे का कोर्स किया, और क्या क्या था हजरत थोड़ा बता दूं, वो सारी चीजें मैं बता दूं। वो टॉपिक अब सुनो सुनो सुनो, आप अपना इसका काम मतलब करें, ये है, आप अपना काम करें। इसका मतलब ये है, इनको समझाने के लिए आए थे, वो तो बात ही खत्म हो गई। वो बात जहाँ सही चल रही है, टॉपिक था, वो टॉपिक उड़ गया, नतीजा निकल अब रहा वो है। बात ही नहीं है। अब सुनो, अब तो ये यहाँ पर खाली उलझाने वाली बातें चल रही है। अब ये बताइए, ये वहाँ सऊदी अरब में रह के आए। अब सऊदी अरब, सब लोग मुतवज्जो हो जाओ, सऊदी अरब से ये किताब छपी है, किताब का नाम है रहनुमाए हज व उम्रा। वही है जो इनके बाप लेकर आए थे इससे पहले। अब सुनो, और इस किताब को इनसे ज्यादा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि ये मेरे कैमरे करीब ले आओ जरा, कैमरे भाई साहब इधर ले आओ, वो दिख रहा है। इधर ले आओ। ये देखें कहाँ से छपी है, घुमा के यही लाया जाएगा तुमको, और इनके है सही नहीं कुछ। ये सिखाएंगे ना, अब सुनो, सिखाएंगे, ये किताबें सिखाएंगे। इन्होंने शुरू में अभी लिख के भी दे दिया, इनके साइन मौजूद हैं, 3 जबानों में कह रहे हैं साइन किए हैं, और साइन ये किए इन्होंने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, इसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। सही है। अब आइए, ये किताब छपी है सऊदी अरब से, रहनुमाए हज व उम्रा व ज़ियारत मस्जिद नबवी। अब लिखने वाले कौन है? मुतअद्दिद उलमा इकराम, यानी पूरी एक टीम ने ये किताब लिखी है, इनके उलमा जो वहाँ पर हैं उनकी मेरे टीम नहीं है, तुम्हारे होंगे। अरे सुनो सुनो, हमारे तो अल्लाह रसूल है। अच्छा अल्लाह रसूल की ये बात आपके नहीं है, ये आपके नहीं है, रसूल की बात करते हैं। अरे ये आपके नहीं है, हमारा कोई नहीं ये नहीं है। है। शेख बात, अब सुनो, हाँ, यही किताब है, सुनो, कुछ नहीं है इनके पास। शेख मैं कुछ नहीं सिखाएंगे। शेख, अब से पहले इनके वालिद साहब अब आप ये बताइए, ये किताब दुरुस्त नहीं है जो सऊदी से छपी था, वो है वीडियो में। अब नहीं तार भाई, गलत बात मत करें आप, अभी आवाम नहीं उठेगी, ये आवाम नहीं उठेगी, आप गलत बात मत करो। ये किताब सुनो, ये भी गलत बात मत करो। इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, इस किताब के अंदर इनकार कर रहे हैं कि हमारे उलमा की नहीं है, तो भाई किसी की नहीं, हमें क्या लेना देना। ये किताब सऊदी अरब से छपी है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है सफा नंबर 11 पर। एक मिनट सुन ले भाई, सुन ले। ये किताब सऊदी अरब से छपी है, जहाँ से ये तालीम हासिल करके आए। 11 सफा नंबर पर लिखा हुआ है, 11 पेज नंबर पर, इस्लाम से खारिज करने वाली बातें। उसमें इस्लाम से खारिज करने वाली बातें जो लिखी है, उसमें दूसरी बात क्या है? लिखते हैं, जिसने अल्लाह और अपने दरमियान किसी को सिफारशी बनाया, उसे पुकारा और उससे शफाअत की दरख्वास्त की और उस पर भरोसा किया, वो बइजमाए उम्मत काफिर हो गया। माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। इन्होंने जो दावा ये लिखा, इन्होंने अभी आप बोलना, इन्होंने ये जो दावा लिखा, उसमें लिखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है, उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। और ये पूरी टीम इनके सऊदी की कह रही है, जहां से इन्होंने तालीम हासिल की, कि जो हुजूर की शफाअत को तलब करेगा, भरोसा करेगा, हुजूर को शफी मानेगा, वो काफिर है। अब बताइए, मुसलमान को काफिर कहने की बुनियाद पर
اور حدیث پاک بخاری شریف کی ہے، من قال لاخیہ یا کافر فقد باء احدہما، کہ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا وہ کفر اگر اس میں نہیں تھا تو یہ کفر اسی کے گلے کا ہار بن جائے گا، تو اب یہ خود کافر ہو جائے گا۔ جب شفاعت ماننے والے مسلمانوں کو کافر کہنے والا ان کی تحریر کے مطابق بھی خود کافر ہو گیا، تو پتہ لگا جو لوگ کافر بنا رہے تھے پوری امت کو، 14 صدی سے جو امت شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی تھی، اس امت کو وہاں سے کافر بنایا جا رہا ہے، سعودی سے، رہنمائی حج و عمرہ و زیارت مسجد نبی کتاب سے، اور اس کے مطابق یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حضور کی شفاعت کو مانے گا وہ مسلمان، اس کو کافر کہنے والا خود کافر۔ لہذا ان کے مطابق، شیخ بابو خان صاحب کے مطابق بھی اب یہ پوری ٹیم جنہوں نے کتاب لکھی ہے خود کافر ہو گئے۔ بے شک بے شک بالکل بے ہو شک گئے۔ بے شک۔ اب اب سن بھی تو لیں، نہیں اب اس کا جواب بھی تو سن لیں۔ بتائیے جواب بتائیے۔ بھائی یہ بتاؤ، یہ کتاب میں نے لکھی، یہاں میری بات چل رہی ہے یا یہ کتاب لکھنے والوں کی بات چل رہی ہے؟ بتاؤ ذرا، آپ لوگ بتاؤ یہ بات میری چل رہی ہے یا اس کی؟ اب سنیں نبی کا فرمان، اب سنو، نبی کریم سنیں فرمان نبی کا، جو تم نے نہیں سنا، سنیں نبی کا فرمان۔ اچھا سنو تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسبوا الاموات، مردوں کو برا مت کہو، جو مر چکا ہے، یہ جتنے جن کی باتیں یہ کر رہے ہیں یہ کوئی بھی زندہ نہیں، کہا آپ مردوں کو برا مت کہیں، فإن اللہ قد افضوا الی ما قدموا، کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ چکا، وہ اپنے کیے کو پہنچ چکا ہے۔ اگر اس نے غلطی کری ہے تو وہ جہنم میں اس کو سزا مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے؟ اور جس کو ایک بار سزا مل جاتی ہے اس کو دوبارہ سزا دی جاتی ہے۔ آپ نے کسی کو قتل کر دیا، آپ 20 سال کی جیل کاٹ کے آ گئے، اب آپ کو پولیس پکڑے گی دوبارہ؟ بتاؤ لوگوں، بتاؤ پکڑے گی پولیس؟ سزا کاٹ رہے ہیں نا، ہاں اب ڈالے لگ گئے، وہ سزا کاٹ رہے ہیں، اس کو دوبارہ سزا دے نہیں سکتے۔ چلو مولانا صاحب اٹھا، بات ختم۔ یہی دین سکھائیں گے، یہی دین سکھائیں گے، یہی دین سکھائیں گے۔ ایسا ہے وہ بار بار اس چیز کے لیے کہہ رہے ہیں تو بات ختم کرو۔ طاہر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ختم کرو۔ نبی نے کہہ دیا جو مر چکا اس کو سزا مل گئی، اس کو تم سزا نہیں سکتے اپنی زندگی میں، یہ اس کا کام ہے۔ چلو یہاں تو سمیٹ دو۔ اب میری بات سنیے، اب یہ بتائیے اس کے مطابق، ارے مولانا شہادت صاحب، ہاں بس 1 منٹ سن لو پھر ختم کر دے رہے ہیں۔ آپ سن لیں، اب سنو کی بات سنو، دیکھو سنیں۔ میں بالکل اخیر کر رہا ہوں بات، ہاں ختم کر دو یہ کر کے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں، سنو، دعویٰ تھا کہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق یہ موضوع مناظرہ تھا، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعویٰ اہل سنت یہ ہوا، سنو، دعویٰ اہل سنت یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شفاعت فرمائیں گے، یہ ہوا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اتفاق، بس 1 منٹ کی یہ ختم ہو رہی ہے بس۔ اس کے مطابق یہ بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر ایمان لانے والا مسلمان اور اس کو کافر کہنے والا خود کافر ہے۔ اس کے مطابق جو کتاب یہ لکھی گئی رہنمائی حج و عمرہ اور زیارت مسجد نبی لکھنے والا خود کافر ہو گئے۔ اب سنو 1 منٹ بھائی، 1 منٹ حضرت ان کی سن لو 1 منٹ۔ بات ہوگی، یہاں پر جو آفت آئی تھی اس پر بھی بات ہوگی۔ چلو آپ کی ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ مٹی میں بھی نہیں آئے تھے، لوگوں کا نکاح ٹوٹ گیا تھا آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ آپ بہتر ہے اس چیز پہ پہلے ایک بار بات کر لیں، ہاں بہت بڑھیا، چیزیں سامنے صاف صاف ہو جائے تو زیادہ بہتر۔ یہ عقیدے کی بات انہوں نے پہلے اتفاق کیا، ساری چیزیں ترتیب سے چل رہی ہیں۔ لاسٹ نتیجہ یہ ہے، اس کے بعد میں آپ دوسری بات کر لینا۔ لاسٹ نتیجہ آپ سن لیجئے، سائن کے مطابق ساری بات ہوئی ہے، یہ ریکارڈ بھی ہوئی ہے، ویڈیو آپ لوگ اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں، لاسٹ 2 منٹ ہے، آپ بھی 2 منٹ بول لینا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، موضوع مناظرہ انہوں نے لکھا شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق ختم کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں بس۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے شفاعت فرمائیں گے۔ انہوں نے دعوی اہل حدیث، ان کا یہ ہوا کہ نبی کی شفاعت سے اتفاق ہے،
यानी दोनों दावे एक से हैं। फिर उसके बाद में दोनों की तरफ से एक बात लिखी गई, वो बात ये थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला, अरे भाई अरमान भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत पर ईमान लाने वाला मुसलमान है और उसको काफिर कहने वाला खुद काफिर है। हमने किताब दिखाई रहनुमाए हज उमरा व ज़ियारत मस्जिद नबवी, ये किताब सऊदी अरब से छपती है। इसमें लिखा गया जो हुजूर को शफाअत करने वाला माने वो काफिर, और ये इन्होंने कहा कि जो मुसलमान को काफिर कहे वो काफिर। तो लिहाजा नतीजा ये निकला कि जिसने ये किताब लिख करके पूरी उम्मत को काफिर बनाया वो सारे लोग अपने ही कौल के मुताबिक खुद काफिर हो गए। और ये बात मैं कोई दुनियादार नहीं कह रहा है, बल्कि मदीने के ताजदार ये बात कह रहे हैं। वो फरमा रहे हैं मन क़ाल ली अखीही या काफिर फ़क़द बाअ अहदुहुमा, कि जिसने अपने किसी भाई को काफिर कहा अगर वो काफिर नहीं है तो ये खुद काफिर हो जाएगा। लिहाजा पूरी सऊदी अरब की वो टीम जिन्होंने लिखा है इसके मुताबिक उम्मत को काफिर करने के मुताबिक बात चल रही है, सऊदिया की बात चल रही है। आपके मुताबिक वो अकीदे के मुताबिक वो लोग काफिर है नहीं जो आपको काफिर कहें इस बुनियाद पर। देखो ताहिर भाई, आप इसमें नहीं बोलोगे। जब ये बात सुनो, जब ये बात तय हो गई तो उलमा बात करेंगे, तो आप उसमें अब हम दोनों करेंगे ना बात, हम दोनों बात। आज ये मान कर रही है, पब्लिक मान कर रही है, आप बात का जवाब देते हैं कि वो सजा मिल रही है, मतलब कोई जिंदा ही नहीं है इसकी ये बात कर रहे हैं। अब रुकेंगे ये आज की किताब में नहीं, अब से 50 साल पहले से चलेगी ये सजा मिल रही है उन लोगों को। उन्होंने ये बात कही बिल्कुल मिलेगी। तुम्हारा कहेगा तुम्हारे को मिलेगी, दूसरा कहेगा उसको मिलेगी, सबको मिलेगी। साबित हुआ शफाअत रसूल हक है, और जो उसको काफिर कहेगा मानने वाले को वो खुद काफिर है। अब इन्होंने कह दिया कि शफाअत रसूल पर ईमान लाने वाला मुसलमान, बिल्कुल तो काफिर कहने वाला काफिर। लिहाजा सऊदी अरब की हुकूमत जिसने ये किताब छापी इनके मुताबिक शेख बाबू खान के मुताबिक सब काफिर है। जाओ तुम कहो सबको काफिर, मैं क्यों कहूँ, आप कहो। अगर औकात है तो जाके वहाँ जाके कह दो। मैंने लिखी आप बताइए। मैंने कहा कि भाई उसको सजा मिल रही है, 10 में 20 में पूछ रहा है। कोई गलती करेगा उसको सजा मिलेगी, अगर आला हज़रत ने कोई गलती करी है तो उनको सजा मिलेगी, अगर अशरफ अली थानवी ने कोई गलती करी है उसको सजा मिलेगी, अगर अब्दुल वहाब ने सऊदी अरब के ने कोई गलती करी है उसको सजा मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, गलती करी है तो ऐसा क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा उनके बारे में। कह दो ना कि ये किताब जो है वो हम उस पर अमल नहीं करते। मैं आपको बताऊं, आप कहिए ये बात, मैं आपको बताऊं, जहाँ से आपने तालीम हासिल की वहाँ से छप रही है किताब और तफसील बन रही है सब। चलो अच्छा बात खत्म कर दो आप। दुनिया का जिक्र है वो आखिरत से दुनिया में नबी शिफात हम बताओ। चलो अब तो आपकी समझ में आ गया। एक मिनट सुनो, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट मेरी सुनो। एक मिनट, मेरा सवाल ये है, हमने आपको बुलाया, हम आपसे सुनना चाह रहे हैं ये तीजा दसमा ये चीज क्या है, ये क्लियर करके बताओ हमें। आप बताओ, ये नहीं बता रहे, आप बताओ। हम इनसे नहीं सुनना चाह रहे, आपसे सुनना चाह रहे हैं, आप बताओ। अब देखें आप, बिल्कुल इस्लाम के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो फर्ज हैं, कुछ ऐसी हैं जो वाजिब हैं, कुछ ऐसी हैं सुनन हैं, कुछ ऐसी हैं मुस्तहब्बात हैं। फर्ज के छोड़ने पर आदमी गुनाहगार होता है, उसकी अदायगी उस पर जरूरी है। ऐसे ही सुन्नतें कुछ ऐसी हैं कि करना जरूरी है और कुछ ऐसी हैं कि करें या ना करें। ऐसे ही बात आती है मुस्तहब की। मुस्तहब वो काम होता है कि करने पर सवाब है, न करने पर कोई गुनाह नहीं। ठीक है, ये बात आप समझ गए। ये फातिहा और ईसाले सवाब का जो मसला है, ये उम्मत में क्योंकि लोग गुनाह में गिरफ्तार हो जाते हैं, अब वो जब दुनिया से चले गए तो अब वो कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, दुनिया से जाने के बाद आदमी रोजा नहीं रख सकता, हज और ज़कात की अदायगी नहीं कर सकता। अब अगर कमी करके दुनिया से गया है और उस पर उस वजह से अजाब कब्र के अंदर हो रहा है, कौन सी वो चीज है कि जो करने से उसके अजाब में कमी हो जाए, कि उसको अजाब में तकलीफ हो जाए? तो हदीस पाक में आया है, इज़ा मातल इंसानु इनक़तअ अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलाह, कि जब इंसान मर जाता है तो मरने के बाद अब वो कोई काम नहीं कर सकता, सारे अमाल उससे रुक जाते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात नहीं कर सकता। अब कौन सी वो चीजें हैं कि जिसके मुताबिक वो अगर मर गया लेकिन सवाब उसको पहुंचता रहे? तो सरकार ने फरमाया 3 चीजें ऐसी हैं कि जिससे उसको सवाब मरने के बाद भी पहुंचेगा, और जब सवाब पहुंचेगा तो उसकी जिद जो अजाब है
وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اس میں کمی ہو جائے گی۔ اب کون سی وہ چیزیں؟ تو سرکار نے فرمایا ولد صالح یدعو لہ، ایک تو وہ کہ جو نیک اولاد چھوڑ جائے اور نیک اولاد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے۔ یہاں یہ قرآن شریف پڑھے گا، تلاوت کرے گا، دعائیں مغفرت کرے گا، یہ ایصال ثواب قبر میں پہنچے گا اور اس کے عذاب میں کمی ہو جائے گی۔ یا پھر ایسا کہ علم او علم ينتفع به، یا ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے کہ لوگ علم سے فائدہ حاصل کریں اور پڑھنے پر ان کو بھی ثواب ملے اور اس کو بھی ثواب ملے جو علم چھوڑ کر کے گیا ہے۔ تیسری چیز سرکار نے ارشاد فرمائی او صدقۃ جاریہ، یا کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی نل گڑوا گیا کہ لوگ جب تک پانی پیئیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا اور برابر کا اس کو ثواب ملے گا جو یہ کام کر کے گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں آیا ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ، کہ جو کوئی بھی اسلام میں اچھے کام کی بنیاد ڈالتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور ان لوگوں کو بھی ثواب ملتا ہے جو اس پر عمل کریں گے، اور سب کے برابر اکٹھا ہو کر کے ثواب اس کو ملتا ہے جس نے اچھے کام کی بنیاد ڈالی ہے۔ تو اب صدقہ جاریہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک لوگ عمل کریں گے ان کو تو ثواب ملے گا، اکٹھا ہو کے اس کو کریڈٹ پہنچے گا جو قبر میں بندہ موجود ہے جو کر کے گیا تھا، یعنی اس کو ثواب ملے گا اور عذاب میں کمی ہوگی۔ اب سنیے، یہ جب ہو گیا ایصال ثواب، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایصال ثواب۔ ایصال کا مطلب آتا ہے پہنچانا اور ثواب کا مطلب ثواب۔ ایصال ثواب ہوا ثواب پہنچانا، کس کو؟ میت کو۔ اب یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اب ایصال ثواب کی قسمیں ہوتی ہیں، کبھی تو ایصال ثواب ہوتا ہے نماز جنازہ کی شکل میں، اس کے لیے دعا ہونا، دعائیں مغفرت ہونا۔ کبھی ایصال ثواب ہوتا ہے مثلا تیجا رکھ لیا یا سوم کی فاتحہ رکھ لی۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو آپ پر گناہ نہیں۔ 10واں، 30واں، کوئی گناہ نہیں، کوئی نہیں کرے گا۔ 40واں، اگر نہ کرے کوئی تو کسی پر نہ کرنے کی بنا پر گناہ نہیں اور کرنے کی بنا پر ثواب، اور یہی ہمارا میت کے جانے کے بعد مقصود۔ تو لہذا سنی جو کام کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارا مرنے والا وہ تو یہاں سے چلا گیا ہمارے درمیان سے، اب پہنچنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے قبر میں؟ تو وہ ہمارے لیے وہاں سے ایصال فیض کرتا ہے۔ اگر کوئی نیک ہے، صالح ہے، وہ ہے تو وہ وہاں سے دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے پروردگار میرے جو باقی لوگ رہ گئے ہیں میرے گھر والے، ان کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ رہیں، یعنی ایمان کی حالت میں ہی ان کو بلا لینا، جیسا کہ میں آیا ہوں۔ اس نے ہمارے لیے وہاں سے کیا ایصال دعا، کیا کی؟ ایصال دعا۔ اور اب وہاں سے جب انہوں نے ہمارے لیے اتنا بڑھیا کام کیا، یہ ان کا ہوا ہم پر احسان۔ اور قرآن پاک فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ جب انہوں نے مرنے کے بعد ہمارے لیے وہاں سے قبر سے احسان کر دیا تو اب ہمارے زندوں کا کیا فرض بنتا ہے؟ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم بھی ان کے لیے احسان کریں۔ وہ احسان یہ ہے کہ ہم ان کے لیے یہاں سے ایصال ثواب کریں۔ وہ ایصال دعا کر رہے ہیں، ہم یہاں سے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہیں آپ کرنے کی وجہ سے۔ تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، برسی اگر آپ نہ بھی کریں تو گناہگار نہیں، اور کریں گے تو اس میں بہت فائدہ ہے، میت کا بہت فائدہ ہے، خود آپ کا بھی ذکر کرنے کی وجہ سے فائدہ۔ لہذا یہ مستحب کام ہے اور یہ ہمارے لیے محل نظر نہیں۔ ہمارے اہل سنت میں اگر کوئی یہ کام نہیں کرے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ سنی نہیں ہے، یہ نہیں کہتے ہم کہ یہ سنی نہیں ہے، بلکہ ہم اس کو سمجھائیں گے کہ میت کا اس میں فائدہ ہے، آپ یہ کرو۔ یہ ایسا کام ہے کہ نہ کرنے میں تو گناہ نہیں، لیکن کرنے میں بہت ثواب ہے، کرنے میں بہت ثواب ہے، لہٰذا آپ سب کو کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پہ جیسے ہم نے 10,000 روپے خرچ کر دیے جی، اور وہ 10,000 اس کام میں نہیں، کہیں کسی غریب کو دے دیے، شادی میں دے دیے کسی غریب کے، یا کہیں مدرسے میں دے دیے، مسجد میں دے دیے، ہمارا دل کہہ رہا نہیں کریں گے، پھر اس کے لیے پیچھے کیوں پڑتے ہیں لوگ؟ سنیے، جو یہ کہے کہ نہیں 40واں ہی کر کے ہی ایصال ثواب ہوگا، آپ مسجد میں نہیں دے سکتے، تو یہ کسی حدیث میں ایسا نہیں، کسی ائمہ کرام کی کتابوں میں ایسا نہیں، یہ کسی پر نہیں تھوپا جائے گا کہ نہیں آپ کو 40ویں کے نام سے یہ کرنا۔ سنیں بات سنیں، 40ویں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 40ویں کا مطلب ہوتا ہے، طاہر بھائی اپنی بات کہہ کے ادھر نہ جائے، اور میں بھی تھوڑا سا بولنا ابھی بولنا، بات مکمل ہونے دو۔ 40ویں کا مطلب بتا رہے ہیں 100% 40ویں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 100% صحیح بات ہے۔ سن لو، آپ کی تصدیق کی ہاں صحیح۔ ہمارا آپ کا بنیادی اختلاف ہے تو ہے، آپ یہ نہیں کہ یہ باتیں کر کے آپ جو ہے ان سے گھسنا چاہو گے، دکھاؤ گے میں بھی آپ کی طرح ہوں، ابھی بہت چیزیں بات نہیں حضرت، اور یہ کہہ کے آپ نے پوری سعودی عرب کو جو ہے مسلم قرار دے دیا، یہ باتیں لکھ کر دی تو بعد میں ہوگی بات، ابھی آپ کے اوپر سوشل میڈیا پہ لوگ کیا کہیں گے آپ سے، وہ الگ چیز ہے۔ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں
40वें का मतलब होता है कि मैयत को गए हुए 40 दिन मुकम्मल हो गए होते हैं। लोगों ने ये तरीका बनाया हुआ है कि कोई ऐसा दिन मुतय्यन कर लिया जाए कि जिसमें सारे लोगों को बता दिया जाए कि अब वो फातिहा का दिन आ गया जहां पर इज्तिमाई तौर पर आप जिक्र करेंगे, इज्तिमाई तौर पर कुरान की तिलावत करेंगे। ऐसा अल्लाह और रसूल का जिक्र करेंगे कि इकट्ठा होकर के, हो सकता है कि अगर अकेला अकेला हर आदमी करता गुनाहगार होता, नहीं अल्लाह की बारगाह में कबूल होती वो बात। लेकिन जब जमात की शक्ल में होगी तो जमात में कोई ना कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है, वो दुआ करेगा तो हो सकता है उसकी दुआ से सारे लोगों की दुआ कबूल हो जाए। तो इसलिए ऐसा दिन मुकर्रर किया जाता है 40वें के नाम पर कि 40 दिन हो गए, अब सब लोग आ जाए रिश्तेदारी में से, और वो मैयत जो 40 दिन पहले दुनिया से गई है उसके लिए इकट्ठा होकर के हम सवाब भेज सकें। तो इसको कहते हैं 40वां। अगर कोई इकट्ठे ना होकर के, कोई किसी वजह से अपने घर से नहीं आ पाया, अपने अपने घर रह गए, लॉकडाउन लग गया, या फिर जो है ट्रैफिक लगा हुआ है, अपने अपने घर से बारिश हो गई, सबने फातिहा पढ़ ली, इकट्ठा नहीं भी हो तब भी सवाब पहुंचेगा। और अगर दावत के तौर पर कोई किसी को कह रहा है कि भाई दावत करो, 40वें की दावत आइए, शरर इसकी कोई इजाजत नहीं है कि आपको दावत बाकायदा की जाए कि भाई जैसे शादी की दावत होती है 40 में खाना खाने आना आपको, ये दावत इस्लाम में जायज नहीं है। आप गुरबा और फुकरा और मसाकिन को खिलाइए, और वो मेहमान जो दूर से आए हुए आपके मेहमान हैं आप उनको खिलाइए। एक चीज और बात से करते हैं सर, ये तरीका है, इसके मुताबिक आप अपना काम कीजिए। एक सवाल ऐसा काम है ये कि अल्हम्दुलिल्लाह इस पर आपको भी सवाब मिलता है और उस मैयत को भी सवाब मिलता है। लिहाजा हर सूरत ईसाले सवाब करना जायज है। और उसकी शक्ल तीजा, 40वां, सोम, बरसी, ये सारी चीजें हैं और इसमें आप करें बिला कबाहत। एक सवाल हजरत इसी टॉपिक को बहुत बड़ा है। ये कहते हैं कि जो खाना सामने रख कर ईसाले सवाब पढ़ दिया जाता है वो खाना खाना हमारे तुम्हारे लिए जायज नहीं है, ये एतराज है। ताहिर भाई नहीं मुझसे कहा था इस चीज के लिए। अब ताहिर भाई का ये हुआ दावा, क्या हुआ दावा? ये हुआ कि कोई खाना अगर उस पर कलामुल्लाह पढ़ लिया गया या कोई जिक्र पढ़ लिया गया सामने रख करके, तो अब उसका खाना नाजायज है, ये ताहिर भाई कह रहे हैं। अब ताहिर भाई बताएंगे भाई कहाँ से इन्होंने इस्लाम में ये चीज पढ़ी है, या किस आलिम से सुनी है वो बता दें। और अगर आपने नहीं पढ़ी है, इनसे सुनिए, तो ये बैठे हुए हैं, ये बता दें हजरत कहीं ऐसा है? अभी मैं बताना चाहूंगा आपकी बात पे, सुने अभी हजरत बता दी ना बात, बता देंगे। मैंने कहा बातें बताई, ठीक है ना, सही बताई, इत्तेफाक कर रहे हैं हजरत, सही बताइए। ठीक हाँ ठीक है, इत्तेफाक कर रहा हूँ मैं उन बातों से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बताई। आपने हदीस पढ़ी, पहले हदीस पढ़ के बताया कि 3 चीजों का सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लैसा मिन शैइन युक़र्रिबुकुम इलल जन्ना व युबईदुकुम मिनन नार इल्ला क़द अमरतुकुम बिही। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाली थी और मैंने तुमको बताना थी। ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुमको जन्नत में ले जाने वाली थी और मैंने तुमको बताना थी। 3 चीजें नबी ने बता दी। आपने बताया सदका जारिया और इल्म और औलाद, 3 चीजें बताई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। 3 चीजें कि मरने के बाद सिर्फ 3 चीजों का जो अजर मिलता है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया। अब हम जो कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये 3 चीजें नबी ने बताई, मेरे भाई यहीं पर रुक जाओ, नबी से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो, इतना काफी है। अगर तुम आगे जो काम करोगे, अगर नबी ने कह दिया कि मैंने तो तुम्हें ये बताया ही था जो तुम लेकर आ रहे हो, तुम करके आ रहे हो, ये तो मैंने बताई नहीं, तो मैंने तो सब चीजें बता दी तुमको जन्नत में जाने वाली, लेकिन ये तुम कहां से लेकर आए हो जो तुमने नए काम किए हैं, ये काम कहां से लेकर आए हो? अगर नबी ने उस दिन ये कह दिया तो फिर क्या होगा इन लोगों का, ठीक है ना। बाकी जब 3 चीजें बताई, इन 3 चीजों में वो सब कुछ आ जाता है जो मरने के बाद लोगों को फायदा जिस चीज से पहुंचता है। सदका जारिया अगर ये है, अगर इनके वालिद साहब मर गए हैं, ये जो भी काम अपने वालिद साहब के लिए करेंगे उसका अजर मिलेगा। लेकिन मैं चाहूं कि इनके वालिद साहब को पार्सल कर दूं, तो ये तो मेरी अपनी मर्जी होगी, मेरे नबी ने तो नहीं बताया कि ऐसे पार्सल कर देना, ठीक है ना। अगर ऐसे पार्सल करने से जन्नत में चले जाते तो कोई करोड़पति अरबपति कोई जन्नत से महरूम नहीं रहता, सब जन्नत में चले जाते, सब जन्नत में चले जाते। एक हाफिज को खड़ा कर देते कि बेटा हमने तुमको खरीद लिया, तुम जिंदगी में पढ़कर कुरान हमारे बाप को बख्शते रहो, वो जन्नत में चले जाते। समझ रहे हैं? नबी ने जो 3 चीजें बताई ये हमारे लिए काफी है। अगर हम इन 3 चीजों के अलावा कहीं दूसरा काम करते हैं और कयामत वाले दिन हमारे नबी ने अगर हमसे ये कह दिया कि तू ये क्या करके लाया, ये तो मैंने बताया ही, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बहुत सारे सहाबा का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों का इंतकाल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुछ नहीं किया था और ना ये बताया था, ये तो हमने अपनी तरफ से घड़ा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बताया और अल्लाह ताला ने भी कुरान में बताया कि
इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मयतमुहा, ये सिर्फ नाम ही नाम है जो घर लिए हैं अंतुम व आबाउकुम, तुमने और तुम्हारे बाप दादाओं ने। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान, अल्लाह ने इसमें कोई दलील नाज़िल नहीं फरमाई। तो जो हमारे नबी ने बता दिया, क्या हमारे लिए काफी नहीं? नबी ने हज्जतुल वदा में बताया, हज कर रहे हैं आप, और वो आपने, आपका पहला और आखिरी हज था, और आपने कहा अय्युहन नास, ए दुनिया के इंसानों, ए दुनिया के इंसानों, इन्नहु ला नबिय्य बादी, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं है, वला उम्मता बादकुम, और तुम्हारे बाद अब कोई उम्मत भी नहीं है, अला खबरदार, फअबुदू रब्बकुम, तो तुम अपने रब की ही इबादत करना, वसल्लु खमसाकुम, 5 वक्त की नमाजें पढ़ना, वसूमु शहरकुम, 1 महीने के रोजे रखना, वादू ज़कात अम्वालकुम, अपने मालों में से ज़कात अदा करना, व तो हज्जु बैत रब्बकुम, और अपने रब के घर का हज करना, व अतीउ औलात उमूरकुम, और अपने मुस्लिम हुक्मरान की बातों को मानना। कहा अगर तुमने ये 6 काम कर लिए तदखुलुल जन्नत रब्बकुम, तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। इन 6 में कोई भी ये नहीं है जो बताए बाद में बताए। तो हम कह रहे हैं कि ये 6 काम हमारे नबी ने जो बताए ये हमारे लिए काफी नहीं है। अल्लाह के बंदो, ये हमारे लिए काफी है। नबी से आगे बढ़ने की बात मत करो, अल्लाह से आगे बढ़ने की कोशिश मत करो। जितना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया ये हमारी जिंदगी के लिए काफी है। हम अपने नबी की ही सुन्नतों पर अमल कर लेंगे तो वो हमारे लिए काफी है। हमको आगे बढ़ा के अपनी तरफ से कुछ घड़ने की क्या जरूरत है? अभी आप इन्होंने जो कहा आप इससे मुतमईन हैं तो हम भी मुतमईन हैं। इनमें कोई दखलंदाजी इन्होंने करी है, गलती करी तो वो हमें साफ वाजे करें। हनीफ हनीफ भाई ने बहुत बढ़िया इन्होंने बताया रोजे के बारे में, इन्होंने बताया नमाज के बारे में, सब चीजें, ठीक है। ये मौजू हो गया अलग। ईसाने सवाब की बात से शुरू की थी बात आ गई नमाज रोजा हज ज़कात। ये बताइए नमाज रोजा हज ज़कात के बारे में किसी को कोई इख्तलाफ है? नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। बात ताहिर भाई ने शुरू की ईसाने सवाब से कि 30 40 में 10वां इनको भी बताओ। यहाँ से बात शुरू हुई थी। मैंने हदीस पाक पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया जब इंसान इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है सारे काम रुक जाते हैं सिवाय 3 कामों के कि उनका सवाब बराबर उसको पहुंचता रहता है। 3 के अलावा किसी का सवाब नहीं पहुंचता। 3 बता दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब सुनो, 3 बता दिए। अब वाजे होने 3 दो। जो बताए हैं वो 3 की कैटेगरी तो देखो कितनी शक्लें हैं उसकी। जैसे फरमाया नेक औलाद छोड़ गया। अब नेक औलाद छोड़ने का मतलब कि वो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करें। आप बताइए 30 40वें के अंदर कौन सी ऐसी औलाद है जो अपने माँ बाप के लिए इसाले सवाब नहीं करती है? कोई दुआ मग़फ़िरत का ही मतलब है या नहीं पहुंचाना चाहती है? आप बताओ। यानी औलाद नेक छोड़ गया जो इसाले सवाब करे, ये औलाद चाहती है, औलाद करती है, शामिल है। ऐसे ही फरमाया गया कि कोई इल्म छोड़ जाओ। इल्म छोड़ने का मतलब यह है कि या तो खुद किताबें लिख जाओ या किताबें खरीद के उम्मत के अपने मैयत के नाम पर क्या है उसको तकसीम कर दो कि लोग पढ़े। जैसे आप पारे बांटते हो, पारे बांटने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने बांटेगी तभी अजर मिलेगा। इतना ध्यान रखना। अब सुनो, मस्जिद के इमाम साहब जो पारे बांटते हैं, क्या लगता है आपको कि ये बांटना इनका गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं। ये कहीं से आते ही होंगे। आते ही होंगे। तो ताहिर भाई की बात सही है, कहीं से आते होंगे, कोई ना कोई भी देते अब नबी ने कहा है, नबी ने नहीं पता। अच्छा रुको 1 मिनट, कौन लोग ऐसे हैं? ये नबी ने कहा है। अगर ये हो कि औलाद ही बांटेगी तभी उसके हक में मकबूल होगा, ये आपने कहाँ से पढ़ा है? कहीं ऐसा नहीं, कहीं ऐसा नहीं। बल्कि हदीस पाक में ये है, सुनो, हदीस पाक में ये है मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसन। मन इसके अंदर उम्म है, ज़बील उकुल सारे आ गए। जिसने भी नेक काम की बुनियाद डाली उसको सवाब मिलना है। चाहे औलाद हो तो भी सवाब बाप की तरफ बाप को मिलेगा, या फिर चाचा हो तब भी। औलाद की कैद नहीं है उसमें ये है कि जो भी किसी खत्म कर दें तरफ से कोई काम करेगा उसको सवाब मिलेगा। ऐसे ही एक काम भाई अरमान भाई, ऐसे एक काम बताया उन्होंने सदक़ा जारिया। हदीस पाक में है, इन्होंने इत्तेफाक किया। सदक़ा जारिया का मतलब कि काम होता रहेगा, सवाब मिलता रहेगा। हुजूर से हदीस पाक से साबित, सरकार के सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से एक कुआं खोद दिया। सुन रहे हैं सब लोग? कुआं खोद दिया। जैसे बेटे ने अपनी माँ के लिए खोदा है, इतना ध्यान रखना, ये नबी बता चुके हैं। सुनो, जैसे कि कोई आज के दौर में सरकारी नल लगा रहा है या कोई टैंक लगवा रहा है, फ्रिज लगवा रहा है मस्जिद में, ये सब उसी की अक़साम है, उसी की शक्लें हैं। उस जमाने में ये चीजें नहीं थी, कुएं होते थे पानी पीने के लिए। तो हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी माँ की तरफ से उनके विसाल के बाद में कुआं खुदवा दिया और कहा कि सब लोग पानी पिएंगे, सवाब मिलेगा, और सबके बराबर सवाब मेरी माँ को मिलेगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया हाजा बि'r उम्मे साद,
ये उम्मे सात की माँ का कुआं है, यानी जितने लोग इससे सवाब हासिल करेंगे सबका सवाब उम्मे सात को पहुंचेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब किसके जरिए पहुंच रहा है? जो पिएंगे। तवज्जो आपकी, यानी खुदवाया औलाद ने, लेकिन सवाब पहुंचाने में सारे शरीक। तो पता ये लगा कि सिर्फ औलाद से ही सवाब नहीं पहुंचेगा, औलाद एक जरिया बन सकती है। वो क्या करे, कुरान शरीफ बांट दे, लेकिन पढ़ेंगे सारे लोग मोहल्ले के, सवाब उन्हीं को पहुंचेगा। समझ रहे? हाँ, मसला वही है, सारी चीजों से पता ये लगा, हजरत उम्मे सात के कुएं से पता ये लगा कि साले सवाब हक है और सवाब पहुंचाना सही है। औलाद पहुंचाएगी, सवाब पहुंचाना सही है। सत्य जारिया करो, सवाब पहुंचाना सही है। ये मैंने हकीकत से समझा दिया, बयान कर दिया, आप भी कह रहे हो हक है, तो लिहाजा आपके मुताबिक भी ये साबित हुआ। हाँ, ये बात आई ना। कौन आवाम है। ये इनके हाँ ठीक है, बैठो, मेन मुद्दे की बात है। पहले एक बात हो जाए, ये सारी बात समझ में आ गई सबके? हाँ आ गई। अभी तक इसाले सवाब करना हक है या नहीं है? हाँ है। आप लोग इंशाल्लाह 40वां कराएं, 10वां कराएं, 3वां कराएं। अब सारी चीजें ये कह रहे हैं कि हदीस से साबित। अब इस पर आ जाओ जरा। अब इसको अगर कोई गलत कहेगा तो वो दलील देगा, और गलत मैं जब तक बैठा हूँ ये साबित करें, बाद में नहीं कहेंगे गलत है। फिर कह रहा हूँ सही है। जनाजा हो या फिर लेके जाते हो, अगर सलाम